السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت رب انا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وفہما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. تمام تعریف تہ حمد و ثنا رب ذوالجلال کنت بیسن بے شمار درود و سلام بر ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تہندس آلس تامت. پتمس درسس مز پوڑ اسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے حضرت مریم علیہ السلام ملائکہ ہند ذریعہ بشارت عطا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کری ژے اخ پنہ اذن ست اخ اولاد عطا یمس زن ناو آسہ عیسیٰ بن مریم اور لقب آس تم سن مسیح یس دنیا و آخرتس مز اللہ تبارک و تعالیٰ سند مقرب بندو اندر آسہ اور بیاکھ صفت آس تمس کہ سہ کرے لکن ست مہد میں بھی اور قہولت کی حالت میں بھی وہ لوگوں سے بات کرے گا. بہرحال ام کس جوابس مز حضرت مریم علیہ السلام جواب دیون قالت رب انا یکون لی ولد. حضرت مریم علیہ السلام اس فرشتے کی بشارت کو سن کر حیرانگی کے عالم میں واپس کہتی ہیں. قالت حضرت مریم علیہ السلام جواب دیتی ہے یا کہتی ہیں رب انا یکون لی ولد، اے میرے رب میرے ہاں کیسے ولد یا میرے ہاں کیسے بچہ پیدا ہوگا. ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی بشر نے کسی مرد نے چھوا نہیں ہے. یعنی عام طور پر یہ زن فطری طریقہ بچہ زینک وہ طریقہ ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ملیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے. تو اسی فطری تقاضے کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام رب العالمینس ونان واپس اے رب العالمین میں کت کٹ سوزیک ژٕ اولاد، میں کت کٹ سوزیک ژٕ بچہ جبکہ کسی بھی مرد نے مجھے چھوا نہیں ہے. قال كذلك الله يخلق ما يشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس جواب دیا قال كذلك الله، ایسا ہی ہوگا جیسے اللہ چاہتا ہے. یخلق ما یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے ویسے بنا ڈالتا ہے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے بس اتنا کہنا کافی ہوتا ہے کن فیکون، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. یعنی حضرت مریم علیہ السلام یلی حضرت جبریل امین علیہ السلام سند ذریعہ آئے بشارت دن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک اولاد عطا کرے گا اور تمس مز آسن یم صفات یم زن اس رات پڑھ. حضرت مریم علیہ السلام گئی انتہائی حیران، اور انتہائی حیرانگی کے عالم میں انہوں نے واپس عرض کیا اے بارالہ خدائی میرے ہاں کیسے بچہ ہوگا جبکہ کسی بشر نے کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں ہے. بہرحال میں کرتے اوتر تہ عرض کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے. اس کا تفصیلی ذکر سورہ مریم میں ہے اور باضابطہ تفسیر میں لکھت اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ وہ پردے میں تھی، یعنی چاہے وہ غسل کرنے کے لیے گئی تھی یا وہ چاہے الگ سے تھی. بہرحال تر حالتس میں حضرت جبریل علیہ السلام تمن نش یون اور اللہ کے حکم سے وہ روح پھونکتے ہیں کن کے رحم میں،
हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के रहम में, तो उसी कलिमा कुन की वजह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कुरान में कलिमतुल्लाह का लफ्ज भी आया है और रूहुल्लाह का भी लफ्ज आया है। कलिमतुल्लाह क्योंकि वह कलिमा कुन से पैदा हो गए, रूहुल्लाह इसलिए क्योंकि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के रूह के फूंकने की वजह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तवल्लुद हुए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की इस हैरानगी को दूर करने के लिए वापस कहा, क़ाल कज़ालिकल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा, ऐसा ही होगा और अल्लाह जैसे चाहता है वैसे ही चीजों को पैदा करता है। अगर तो याद आए जब हमने यहया अलैहिस्सलाम का जिक्र पढ़ा था, यम सातन अल्लाह तबारक व तआला हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बशारत दिस कहज हजरत यहया अलैहिस्सलाम की बशारत पाकर ज़करिया भी बिल्कुल हैरान हो गए थे और उन्होंने कहा था, क़ाला रब्बि अन्ना यकून ली गुलाम वक़द बलगनियल किबर वम्रअती आक़िर, ए अल्लाह हमारे यहाँ कैसे बच्चा पैदा होगा जबकि मैं तो बुढ़ापे को पहुंच गया हूं और मेरी बीवी वो बांझ है। अल्लाह ताला ने क्या बयां, क़ाल कज़ालिकल्लाहु यफ़अलु मा यशा, अल्लाह जैसे चाहता है वैसे ही करता है। वहां पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ था कज़ालिकल्लाहु यफ़अलु मा यशा, अल्लाह जैसे करता है। अम सातना यफ़अलु अमसा वन तिकाज बज़ाहिर ओस तत सबब मौजूद, अगरचे सबब में वो ताकत नहीं थी लेकिन सबब मौजूद था। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज इस्तेमाल किया क़ाल कज़ालिकल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा, यानी यख़्लुक़ माने पैदा करना, सिरे से ही कोई सबब मौजूद ना हो उसको पैदा करना, उसको कहते हैं यख़्लुक़ु, खालिक से वन पैदा करने वाले, मगर किस पैदा करने वाले को, जो बगैर सबब के भी किसी चीज को पैदा करता है। तो यहाँ पर कहा गया कि क़ाल कज़ालिकल्लाह, ऐसा ही अल्लाह, जब अल्लाह ऐसा ही करेगा, यख़्लुक़ु मा यशा, जिस चीज को चाहता है पैदा करना उसे पैदा करता है। गो अम लफ्ज़ से इशारा यवन अत कत कुंती दिन कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक वो कोई बदचलन औरत नहीं थी। एक तो ये इशारा मिलता है, दूसरा इशारा यह भी मिलता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक ये अल्लाह की रूह या अल्लाह का कोई जिस्म का हिस्सा नहीं है बल्कि ये मखलूक है, क्योंकि इनके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यख़्लुक़ु मा यशा, अल्लाह जैसे चाहता है वैसे बनाता है। गो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मखलूक हैं, इनको पैदा करने वाला जो है वो असल खालिक है। बहरहाल यह गई ज़हनस मज आसुन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के मुतलिक, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतलिक ये जन यहूद और नसारा का अकीदा उनकी विलादत के बारे में बिल्कुल मुख्तलिफ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सिंदिस विलादतस मुतलिक यहूदन और ईसाइन हुंद अकीदा बिल्कुल अलग। वो अकीदा क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए, तिकाज अत नावस पे मुख्तलिफ दोह आमद मनाने और आज भी मनाए जाते हैं। यहूद का जो अकीदा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक वो ये है कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक उनका अकीदा ये है कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के नाजायज ताल्लुकात है हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के साथ। यानी यहूदन यमजन अकीद केमिस मुतल्लिक हजरत ईसा मुतल्लिक वो ये है कि वो कहते हैं कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम यम सातन हजरत ज़करिया सिंदिस कफालतस मज आय, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक उनके नाजायज और गलत ताल्लुकात है किनके साथ, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के साथ। इसी नाजायज ताल्लुकात की बुनियाद पर नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हजरत ईसा पैदा हो गए, इसलिए वो हजरत ईसा को वलदुज़ ज़िना करार देते हैं। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक तुम समझन अमिस केमिस नाजायज औलाद किसको, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। यही नतीजा है, यह क्या बने, इसी वजह से उन्होंने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, क्योंकि वो कहते हैं कि इन्होंने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के साथ नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक बदकारी या जिना का इर्तिकाब किया। अथ पादाशस मुझ कोर यहूदो कत्ल कुस, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। यह है किनका अकीदा, यहूद का अकीदा। यानी उनके मुताबिक नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हजरत ईसा वलदुज़ ज़िना है और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक वो पाकबाज खातून नहीं थी बल्कि वो एक जानिया और फाहिशा औरत नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक थी। अच्छा गो ये हुन, जबकि ईसाई जो है यानी नसारा जो है उनका अकीदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में ये है, वो कहते हैं कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम यजन यमसातन सो जवानी हिंदिस हालतस मज वज, उनकी मंगनी हो गई थी अपने चचेरे भाई के साथ। यमन हिंद मंगनी गमज केमिस से, अपने चचेरे भाई, उनका नाम था यूसुफ नजार।
तफसील मुझे तम नाम लिखित यूसुफ नजार। तो उनके साथ उनकी मंगनी हो गई थी। और अब यहां से दो फिरके हो गए हैं ईसाइयों के, नसारा के। एक फिरका कहता है कि अमिस यूसुफ नजार हसा आव ख्वाबस मज कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से, जिसे वो खुदावंद कहते हैं, और ये रवायत इंजीलस मज खुदावंद की तरफ से उनका ये जन उनकी तरफ रूह फूंक दी गई और वह हामिला हो गई। यानी ये जन सोन अकीद अलबत्ता वो कहते हैं कि हजरत अमिस यूसुफ, अमिस क्या था, यूसुफ नजार ये जन अमिस ख्वाबस मज हाल, और इसे कहा गया कि आप ये मंगनी नहीं तोड़ना इस बुनियाद पर कि ये हामिला हो गई हैं, क्योंकि यह हामिला अल्लाह के हुक्म से हो गई है। यह ग्रोह नसारान ब्या ग्रोह नसारान उनका अकीदा यह है, और वो ये कहते हैं कि अमिस हसा गई मरियम अलैहिस्सलाम मंगनी अमिस यूसुफ नजार से, और बियाह के बगैर यानी रुखसती से पहले ही इस यूसुफ नजार और मरियम अलैहिस्सलाम के नाजायज ताल्लुकात हो गए, और इस नाजायज ताल्लुकात की वजह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई। उनके यहाँ रुखसती से पहले मंगनी होने के बाद रुखसती से पहले मियाँ बीवी का मिलाप होना मानो जुर्म अजीम। इसीलिए इस पादाश में उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करना चाहा। यानी यासा वलदुल जिना वो भी समझते हैं। और अथ मुझे तुम ये हजरत याह्या अलैहिस्सलाम, जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर तोहमत आ गई किसकी, अमची नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक गलत ताल्लुकातन हिज जिनाहच और वलदुल जिना आसनच हजरत ईसा, तो कुरान में हमने पढ़ा कि याह्या अलैहिस्सलाम इनकी क्या करेंगे, तस्दीक राती पोड़। तो हजरत याह्या अलैहिस्सलाम ने जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की बारात जाहिर की कि या सच पाकबाज खातून है, तो इस पादाश पे हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को भी कत्ल किया गया। यानी यमाय दशवई युजन याह्या ते ज़करिया मोल पथर इनको इस हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की यजन पाकबाजी हिंदिस बुनियादस पे आयम क्या करने कत्ल। तो मालूम में यह कि दोनों ग्रोह, नसारा का एक बहुत बड़ा ग्रोह और यहूद का तो कुल्ली तौर पर ग्रोह, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वलदुल जिना समझते हैं, और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को क्या समझते हैं, इन्हें पाकबाज खातून नहीं समझते हैं। अलबत्ता ये सूरह मरियम पढ़ो, वहां पर कुरान ने बाज़ाब्ता ऐलान किया है मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में, माँ कान बगिया, कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कोई बदचलन या बद किरदार खातून नहीं थी। और इनकी अजमत में और इनके दर्जात के बारे में मैंने आपको हदीस भी सुनाए हैं। बहरहाल ये मुतलिक वन अल्लाह ताला फरमान क़ाल कज़ालिक अल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला कि अल्लाह जैसे चाहता है वैसे ही किसी को पैदा करता है, मखलूक तख्लीक करता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और ये भी याद रखिए, आज मुसलमानन मज चलन चलोमुत और गैरों में तो था ही, वो वैलेंटाइन्स डे मनाते हैं, यौम आशिका या जन वनन। इस वैलेंटाइन्स डे की तारीख यही है कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वलदुल जिना नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक समझते हैं, और मरियम अलैहिस्सलाम के नाजायज ताल्लुकात और रोमांटिक ताल्लुकात किनके साथ जोड़ते हैं, हजरत ज़करिया के साथ या उस यूसुफ नजार के साथ। तुम समझन अत यह सोन मजहबी वतीर मजहबी क्या अमल क्योंकि इस काम का इर्तिकाब किन्होंने किया, उनके मुकाबले में, उनके मुताबिक हजरत मरियम ने। तो उस दिन को ये वैलेंटाइन्स डे के नाम से या यौम आशिका के नाम से बिल्कुल आज मनाते हैं, और मुसलमान तिश अनजाने मज और बेखबरी मज अत वैलेंटाइन डे क्या करन, ये इसका साथ देते और इसको मनाते हैं। हालांकि इसकी तारीख किसके साथ जुड़ी हुई है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस गलत अकीदे के साथ। तवे अल्लाह ताला फरमान क़ाल कज़ालिक अल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा, इज़ा क़ज़ा अमरन, जब भी अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज के करने का फैसला करता है, फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, तो अल्लाह तबारक व तआला उस चीज के लिए क्या कहता है, कुन हो जा, फ़यकून तो वो हो जाता है। हालांकि उलमा ने इसकी तफसीर में लिखा है कि ये कुन लफ्ज जो है ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें समझाने के लिए कहा है, वरना अल्लाह को कुन लफ्ज कहने की भी जरूरत नहीं है। ना अल्लाह तबारक व तआला कुन लफ्ज बनने की जरूरत, क्योंकि अल्लाह जिस चीज का इरादा करता है वो खुद ब खुद हो जाती है। अवे चूंकि कुरान यह एड्रेस कर इंसानन उनकी जबान में और उनकी लेवल में, इसीलिए इंसानों को समझाने के लिए लफ्ज कुन इस्तेमाल किया गया, वरना अल्लाह को लफ्ज कुन कहने की भी जरूरत नहीं है।
अच्छा, ये तो हो गया एक या ज़िमनन केमसन बारात ज़ाहिर करना हजरत मरियम। असल में हम क्या पढ़ रहे हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत कैसे हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की मखलूक है, खालिक नहीं है। ज़िमनन आए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही के सिफात बयान करना। अब उन्हीं सिफात का तज़किरा फिर से चल पड़ा है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं जो बच्चा यानी ईसा अलैहिस्सलाम हम आपको अता करेंगे उसकी सिफात ये होंगी, ये मैं पढ़। और एक और सिफत अल्लाह ताला ने बताई, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, अल्लाह तबारक व तआला उसे किताब और हिकमत की क्या देगा, इल्म अता करेगा। व तौरात वल इंजील, और किसका इल्म होगा, तौरात और इंजील का। रवायतन मुझे आमुद कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने गजब का हाफिजा दिया था, यानी उन्होंने जबरदस्त क्या हाथ। और कहा जाता है रिवायत में ये इंतहाई खुश नवीस थे। खुश नवीस को बेहतरीन हैंड राइटिंग कमन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, बल्कि लिखा जाता है कि अक्सर तौरात के नुस्खे उन्होंने अपने हाथ से लिखे हैं। और यम सातन तुम जाय माँ के पेट से ही वो तौरात के हाफिज थे। रिवायत में आता है कि वो माँ के पेट से ही क्या थे, तौरात के हाफिज भी थे और आलिम भी थे। और रिवायत में आता है जब यहूद के बड़े बड़े अकाबिर उलमा यहूदन में जिनको वो इहबार कहते थे, तुम यम सातन मसल बयान इस कारण तौरात, और उनकी आदत थी कि वो मसाइल को खलत मलत करते थे और तुमन तुम पन्ने नफ्स मुताबिक क्या करन, टैंपरिंग करन, तुमन मॉडिफिकेशन और अडल्ट्रेशन करन। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनको हवाला देकर और उनको बाज़ाब्ता तौरात की आयात सुनाकर अपने हवाले देते थे और उनकी इस काजरवी को दूर करते थे। बाज़ाब्ता हुक्म नहीं, ये मसला इस तरह से नहीं है, मसला इस तरह से है। इतना बड़े आलिम केमिक तौरात और इंजील के तो वह आलिम थे ही, क्योंकि इंजील तो उन्हीं पर नाजिल हुई थी। और यह अल्लाह का कानून है, जिस नबी पर जो किताब नाजिल होती है वो उसका सबसे पहला आलिम और सबसे बड़ा आलिम होता है। अवै अल्लाह ताला फरमान वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व तौरात वल इंजील, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें किताब और हिकमत का भी इल्म अता किया था और तौरात और इंजील का भी इल्म अता किया था। अच्छा, थोड़ा नीयत ज़हन पास, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा था जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी। वहां उन्होंने दुआ मांगी थी रब्बना वबअस फीहिम रसूलन यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत। वहां हमने किताब और हिकमत किसका तर्जमा किया था, किताब से मुराद कुरान मजीद, हिकमत से मुराद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा। यह करना तम साथ। अब इस आयत के ज़िमन में आप फिर से मतलब सोन अकीद वुशु यतन किस पर आमत। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमारा अकीदा है कि वो कुर्ब कयामत में फिर से नाजिल होंगे और वो उम्मत मुस्लिमा की क्या करेंगे, रहनुमाई उस वक्त। मुफ्ती मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदोली की मारिफुल कुरान यजन तुम किताब लिखम मारिफुल कुरान एक मारिफुल कुरान उन्होंने लिखे मौलाना इदरीस कांदोली ने, थद पाइक मुफस्सिर। उन्होंने इस आयत की तफसीर में लिखा है वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा से मुराद है कुरान और सुन्नत का इल्म भी उनको अल्लाह ताला ने दिया था, क्योंकि उनको कुरान और सुन्नत की ही रहनुमाई से उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करनी है। ठीक है, तुमन कर युन, उनको तो कुर्ब कयामत में आना है। कुर्ब कयामत में जब वो आएंगे तो वो किस हालत में आएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर, और उन्हें उम्मत की उस वक्त पेशवाई करनी होगी, उम्मत लीडरशिप तुमन करें। वो वे तब कर सकेंगे जब उन्हें कुरान और किसका इल्म होगा, सुन्नत का इल्म होगा। इसलिए उन्होंने इस आयत से इस्तिदलाल किया है वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये तो नसचन किताब मुराद इंजील किया, क्योंकि उनकी किताब कौन सी थी, क्योंकि उसका जिक्र अलग से हुआ है व तौरात वल इंजील। इससे मुराद है कुरान और सुन्नत का इल्म भी अल्लाह तबारक व तआला ने किनको दिया था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। इससे हमारा अकीदा पुख्ता हो जाता है, क्योंकि उन्हें कुरान और सुन्नत का इल्म देने की वजह ये है क्योंकि उन्हें वापस आना है कब, कुर्ब कयामत के दौर में। इसलिए हुंद बातिल अकीदत नफी गसन कि जो कहते हैं कि नौज बिल्लाह मिन जालिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर चढ़ गए और वो बिल्कुल हमने उनको हमारे गुनाहों की पादाश में या हमारे गुनाहों की सजा वो पा चुके हैं, इसलिए वो सूली पर नौज बिल्लाह मिन जालिक चढ़ गए। मगर यहाँ कुरान कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कुरान का भी इल्म दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का भी इल्म दिया। किस लिए, अगर न तुमन या जमानस में यूनिश फिर कुरान और सुन्नत का
کیوں علم ان کو دیا گیا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قرب قیامت میں آئیں گے، کیونکہ انہیں لوگوں کے فیصلے قرآن اور سنت کے مطابق کرنے ہیں، اور انہیں اس امت کی قیادت قرآن اور سنت کی پیروی ہی میں کرنی ہے، اسی لیے انہیں قرآن اور سنت کا علم دیا گیا۔ ام پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ بی کینٛہہ صفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کرن انشاءاللہ الرحمن۔ کل کے درس میں ہم ان صفات کو پڑھیں گے۔ رب العالمین اس مگو دعا کہ سُہ دین اَسہِ یِمن آیاتن پر عمل کرن توفیق۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔